Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today, yes, we have to start the lesson number 7. Lesson number 7 is the lesson about the lens. Okay, so here we will see the different type of the lenses. Last year, you have learned about the mirrors and their types. So in that you have seen the mirrors are mainly two types. And what are the two types? Plane mirror and spherical mirror. And in that you have seen the spherical mirror further classified into the two groups, concave mirror and convex mirror. Okay, ये आपने क्या है ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा. And the terms related to the concave mirror as well as convex mirror, plane mirror, and the characteristics of the image formed by the concave mirror, convex mirror and plane mirror. Okay, yes, these things you have studied in the 9th standard. So now yes, this year there is a lenses lesson. In that yes, we will see the some terms are similar to that of the mirrors. Can you recall? Can you recall? Now see the first question under the can you recall. First question is indicate the following terms related to the spherical mirror in the following figure 7.1. Now is pole, center of curvature, radius of curvature, principal focus. So here in 7.4, now see yes, this is the sphere from which the spherical mirror is made. अब ये क्या है, ये hollow sphere है. That is this is made up of the glass. ये क्या है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल क्या है, ये hollow sphere which is made up of glass. कांच का बना हुआ hollow sphere है. Now yes, here we have to label, we have to show what is the pole, what is the center of curvature, what is the radius of curvature, what is the principal focus. Okay, so now see yes, the center. Okay, this center, ये जो center दिख रहा है आपको, okay, ये center जहाँ पे ये डॉट रखा है, this center is called as the center of this is called as the center of curvature. Center of curvature. So center of curvature is nothing but the center of the hollow sphere which is made up of the glass. तो ये जो hollow glass का बना हुआ sphere है उसका center ही क्या है, center of curvature. Okay, and this you have learned in the 9th standard. Now this is just for revision, ये revision के लिए. ओके, तो यस व्हेन यू लेवल इट व्हाट यू विल राइट, यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, next one that you have to show here, yes, radius of curvature. Now you see from the center to the that circumference of the sphere, जो क्या है, yes, यहाँ सेंटर से लेकर ये जो सेंटर है, सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है इस स्फीयर के क्या है, ये सर्कमफेरेंस तक, दिस लेंथ. ओके, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे 3 लाइन शो की है. तो दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज मेड अप ऑफ ग्लास. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, इसका रेडियस, किसका रेडियस, इस स्फीयर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, नाउ सी हियर, यस, हियर वन मिरर इज शोन द दिस मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर, जो मिड पॉइंट है मिरर का, सेंट्रल पार्ट जो है ये उस मिरर का, ये सभी हम स्फीयर का सेंट्रल पार्ट की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द मिरर. नाउ सपोज दिस इज द मिरर, ये मिरर है. ओके, तो इस मिरर का जो सेंटर है ये सेंटर, और इस स्फीयर का जो क्या है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द पोल. इसको क्या बोलते हैं,
द सेंटर ऑफ मिरर, ये जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इट्स क्लियर नाउ? ये समझ में आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यस, द पॉइंट वेयर, sorry, principal axis, the line joining the pole and the center of curvature is called as the principal axis. Now yes, we have to understand the principal focus. Okay, अब यहाँ पे हमको क्या समझना है? principal focus, the point at which the incident ray appear to meet or in actual they meet, that point is called as the principal focus. Okay, the incident ray, okay, the incident ray after the reflection, after the reflection meet a point on the principal focus, that point is called as the principal axis, meet at the principal axis or appear to meet on the principal axis, that point is called as the principal focus. Okay, so now yes, this was about the revision, this was about the revision of the mirror. Now see the question number 2. Question number 2 देखो अभी क्या है? question number 2, yes, how are concave and convex mirrors constructed? अब क्या बोला है कि किस तरह से कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनाए जाते हैं? तो यस, इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न इट, नाउ यस जस्ट रिवाइज इट. सपोज यस दिस इज द स्फीयर, अब ये क्या है? ये स्फीयर है. ओके, अब इस स्फीयर को क्या किया हमने? इसको यहाँ से कट कर दिया. तो यस, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस कर्व, इस तरह का आपको कर्व मिलेगा. इस ये पार्ट जो है इसको हमने क्या किया? इस होलो स्फीयर को यहाँ से कट कर दिया. तो यू विल गेट दिस पार्ट, दिस पीस, ये पार्ट मिलेगा, ये पीस मिलेगा. अब अगर हमने क्या किया? ये दो तरीके हैं, दो तरीके. अगर ये ग्लास का नहीं हो तो, ग्लास का नहीं हो, सपोज मेटल का हो, सपोज ये पीस किसका है? मेटल का. अगर ये मेटल का है तो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर इनर वन, अगर अंदर वाले पार्ट को हम पॉलिश करते, खूब पॉलिश करते, एकदम शाइनी बना देते हैं, तो जब अंदर वाला पार्ट शाइनी होगा, पॉलिश होगा, तो रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस सरफेस, इनर सरफेस, जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. व्हाट आई टोल्ड यू, सपोज दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ द मेटल, किसी मेटल का बना हुआ है, एंड इफ इट्स इनर पार्ट इज पॉलिश्ड, इनर पार्ट को खूब शाइनी कर दिया, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस इनर सरफेस. अब इस इनर सरफेस से जब होगा तो यस, जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से क्या होगी? आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द concave mirror. So in this way, by polishing the inner surface, when it is made up of metals, it forms the concave mirror. concave mirror क्या बनेगा? concave mirror. तो this is the first method. Now second method. okay, second method क्या है? yes, to make the concave mirror. अब देखो, suppose ये सभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये second one, suppose now its outer surface is coated with the paint. ओके, ये जो ऊपर जो बाहर का सरफेस है, इसको क्या किया? ये पेंट कर दिया. किसका पेंट? शाइनी सिल्वर, सिल्वर की पेंट कर दिया हमने. शाइनी सिल्वर की पेंट कहाँ से किया? आउटसाइड से, बाहर की तरफ से. and this silvery paint is protected by applying the red paint. okay, अब इसके बाद पहले क्या करते? बाहर के हिस्से में हम लोग क्या करते? सिल्वर का पेंट लगाते, शाइनी सिल्वर पेंट, एंड उसके बाद में क्या है? रेड कलर इसके ऊपर क्या है? अप्लाई कर देते, सो दैट जो सिल्वर का शाइनी पेंट है दैट शुड नॉट बी रिमूव्ड, वो निकले नहीं, इसलिए
क्या है, ये ऊपर से रेड कलर पेंट मार देते हैं उसके बाद, तो व्हाट हैपेंस, द इनर सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिव। ऐसा करने से भी क्या होता है, इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिव, एंड दिस फॉर्म द कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है। सिमिलरली when the same glass piece when the same glass piece is polished from outer side, अगर सेम, जैसे ये क्या है, ये पीस है, ये सेम पीस है, सेम क्या है, ये पीस है, एंड इफ इट इज पॉलिश्ड, ओके, इसको पॉलिश किया मतलब चमकदार बनाया, पॉलिश मतलब शाइनी बनाया उसको, ओके, मेटल का हो या कोई अदर सरफेस हो, तो इफ द आउटर साइड इज पॉलिश्ड और मेड शाइनी, देन कमिंग रेज गेट रिफ्लेक्टेड, कमिंग रेज गेट रिफ्लेक्टेड, वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड दिस इज यस नथिंग बट द कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। अब देखो यस दूसरा तरीका क्या है, यस इट्स इनर इनर साइड इज पेंटेड, ओके, इसका अंदर का साइड, या तो दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका कि ये बाहर वाले को पॉलिश करो, यस उसको क्या करना है, पॉलिश करके शाइनी बनाना है, अगर वो मेटल है या किसी दूसरी चीज का बना है, देन तो रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस, yes, this outer surface, and second method is to paint the color from inside of that yes piece। अब ये जो ग्लास का पीस है, इसको अंदर की तरफ से क्या किया, पेंट लगाया, एंड दैट पेंट इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग द रेड कलर, रेड पेंट लगा के उसको भी क्या करते, प्रोटेक्ट कर देते। नाउ यस कमिंग रेज यस कम एंड स्ट्राइक टू द this outer surface of that glass, and then it get reflected, and it is called as the convex mirror, तो इसको बोलते हैं हम लोग convex mirror। तो this is the way to make the yes mirrors। अब ये मिरर को बनाने का, और ये कौन से मिरर बनाने के मेथड्स मैंने बताया, स्फेरिकल मिरर, एंड इफ यू वांट टू मेक द प्लेन मिरर, तो यू हैव टू टेक द प्लेन पीस ऑफ द पेपर। क्या करना है, अगर प्लेन मिरर बनाना है तो एक जो है ये क्या लेना है, ग्लास की शीट लेनी है आपको, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द पेंट ऑन वन साइड, सपोज ये ग्लास की पीस है, नाउ ये पेंट, ओके, सिल्वरी पेंट इज अप्लाइड, ओके, ऑन द इस लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या कर दिया, पेंट अप्लाई कर दिया मैंने, एंड देन यस टू प्रोटेक्ट इट अगेन द रेड पेंट इज अप्लाइड ऑन इट, देन दिस सरफेस बिकम रिफ्लेक्टिव, तो ये सरफेस क्या रहता है, रिफ्लेक्टिव, एंड इट फॉर्म द प्लेन मिरर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द yes plain glass, okay, that's why it is called as the plain mirror, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो ये था तरीका, ये था मेथड मिरर को बनाने का। नाउ लेट्स सी अबाउट द लेंसेस, अब लेंस के बारे में देखेंगे। तो नाउ दिस वाज रिवीजन फॉर यस मिरर्स, ये मिरर के लिए रिवीजन था। अब हम लोगों को क्या देखना है, अबाउट द लेंसेस। Lenses, you might have seen lenses used in day-to-day life. Some examples are lenses used by old person for reading, lenses embedded in the front door of the house, the lens which the watchmaker attached to his eyes, etc. आपने इन जो एग्जाम्पल्स दिए ये जरूर देखा होगा। यस, वॉच रिपेयरर अपनी क्या करता है, आंखों पे लेंस अटैच करता है, और दूसरा जो क्या है, जो वॉच रिपेयरर ये लेंस अटैच करता है, ये उसके क्या है, पुर्जे को उठाने के लिए, उसको सेट करने के लिए। सिमिलरली यस यू हैव सीन इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि क्या है, ये जो डोर होता है फ्रंट डोर, उसमें क्या है, ये लेंस लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं पीपिंग होल। क्या बोलते हैं, पीपिंग होल। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, बाहर झांकते हैं, झांकने के बाद में इस क्या है, देखने के बाद में हम क्या करते हैं, डोर ओपन करते हैं कि कौन सा पर्सन वहाँ पे खड़ा है। और ओल्ड पर्सन को स्पेक्टिकल्स लगा के देखा होगा ये रीडिंग करने के टाइम, कि जो है ये रीडिंग करने के टाइम जो ओल्ड पर्सनस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं, मीन चश्मा पहनते हैं, एंड दैट स्पेक्टिकल्स यस कंटेन द यस लेंसेस।
तो lenses are used in spectacles, they are also used in telescope as you have learnt in the previous standard. अब ये टेलीस्कोप में, बाइनाकुलर्स में, माइक्रोस्कोप में, ये सभी जगह पे क्या है, ये लेंसेज यूज होता है. नाउ व्हाट इज ए लेंस? लेंस है क्या एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो ये दो चीज़ें यहाँ समझना है. जैसे हमने मिरर देखा तो मिरर आर मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लास. तो सिमिलरली लेंसेस आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, बट हियर इन लेंसेस द टू सरफेसेस आर बाउंड टू ईच अदर टू फॉर्म द लेंस. लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लेंसेस में दो जो सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस, या एक प्लेन और एक स्फेरिकल सरफेस, ऐसा भी होता है. यस, वन इज प्लेन सरफेस एंड यस another one is the spherical surface and they are bound to each other. और वो एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है. and it is transparent, और ये transparent होता है. then it is called as the lens. A lens is a transparent medium. Lens is a transparent medium bound by the two surfaces. बाउंड बाय द टू सरफेसेस. तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से क्या है, जुड़ा हुआ रहता है. द लेंस विच हैज द टू स्फेरिकल सरफेसेस, द लेंस विच हैज द टू स्फेरिकल सरफेसेस, the lens which has the two yes spherical surface and which are puffed out, which are puffed up outward is called convex or double convex lens. अब ऐसा लेंस जिसमें क्या है, टू स्पेरिकल सरफेस है एंड पफ्ड ऑफ आउटवर्ड. पफ्ड ऑफ आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ क्या है, फुगे होते हैं, बाहर की तरफ क्या है, आउट ग्रोथ दिखाई देता, उभरा हुआ दिखाई देता है. तो ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस. इसे लेंस का क्या नाम है, कॉन्वेक्स लेंस. एंड सी यस, ये पफ्ड ऑफ है, ये क्या है, फुगा हुआ पोर्शन दिख रहा है इस साइड और इस साइड. तो दोनों साइड में ये क्या है, ये पफ्ड ऑफ जो है ये पार्ट प्रेजेंट है इस लेंस में. तो नाउ ये दोनों जो पफ्ड ऑफ है, दो सरफेसेस, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज द बाई कॉन्वेक्स लेंस. Okay, now see the characteristic of it. Now yes, the convex lens has thicker portion in the middle. It is thicker in the middle. ये थिक है, बीच में थिक है, मोटा है. और क्या है, यस इसका जो क्या है, किनारा जो है ऊपर और नीचे, किनारे को क्या बोलते हैं, एज. EDGE एज. तो देयर एजेस आर थिनर. एजेस क्या है, थिन है, पतले है, नैरो है. बट इसका जो सेंट्रल पार्ट है, मिडल पार्ट है, वो क्या है, थिकर है. दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर as compared to the edges. The lens with both surfaces spherical on inside is called a concave or double concave lens, and this lens is thinner at the center as compared to its edges. Now see this lens. Now yes, here at edge it is थिकर. एज जो है, एज किनारे जो दोनों है वो क्या है, थिक है, मोटे हैं. और ये सेंट्रल पार्ट जो है, इसका सेंटर जो है वो क्या है, थिन है. तो दिस इज यस कॉनकेव लेंस. ओके, ये कॉनकेव लेंस है. नाउ यस हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लेंसेस आर शोन. नाउ दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस. इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. नाउ यस सी दिस लेंस. यस, वन साइड इज ओनली पफ्ड ऑफ एंड वन साइड इज अ प्लेन. यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट है और एक पफ्ड ऑफ है. तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. नाउ सी द नेक्स्ट वन. इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सीयर क्या दिखाई दे रहा है, ये कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओके, तो इसका क्या नाम है, पॉजिटिव मेनिस्कस. एंड यस हियर दिस इज द बाइकॉन्केव lens, and here one surface is plane and one is concave, that's why it is called as the plano concave. And here yes, it is yes, that curve is on right hand side
Okay, and this is called as the negative meniscus. The different types of the lenses are shown in figure 7.2. A ray of light get refracted. Okay, keep in mind the rays are refracted through the lenses, whereas in the mirror the rays are reflected. जबकि मिरर में क्या होते, रेस रिफ्लेक्ट होते, बिकॉज वन सरफेस इज ऑलवेज कोटेड, क्योंकि एक सरफेस क्या होता है उसका हमेशा कोटेड रहता है, बट हियर इन द लेंसेज द बोथ सरफेसेस आर ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे दोनों सरफेस क्या रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं. A ray of light get refracted twice while passing through the lens, once while entering the lens and once while emerging from the lens. Now yes, in previous lesson you have seen that yes, refraction of light. क्या सीखा आपने? Refraction of light. And when the ray of light, yes, suppose yes, you have seen when ray of light, okay, from the rarer medium enter into the glass slab, that is the denser medium, it bends towards the a normal, and then so here there is a yes first time refraction of this at this surface, and when it comes out then again refraction takes place. So yes, in the same way, when a refraction takes place through the lenses, so yes, there is the yes two time refraction takes place, one when the ray enter in the glass and one when it comes out from the glass. तो दो बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होता है. रिफ्रैक्शन कितने बार होता है? टू टाइम्स, ट्वाइस. A ray of light, a ray of light get refracted twice while passing through a lens, once while entering the lens and once while emerging from the lens. तो जे रे ऑफ लाइट होती है दो बार रिफ्रैक्ट होती, एक बार उस लेंस में एंटर करने के टाइम और एक बार क्या है उस लेंस से बाहर आने के टाइम. द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंजेस बिकॉज ऑफ दीज रिफ्रैक्शंस. अब जो आने वाली रेज है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. बोथ द सरफेसेस ऑफ द मोस्ट लेंसेस आर पार्ट ऑफ द स्फीयर. यस, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंसेस होते हैं उनके दोनों स्फीयर किसके बने हुए रहते हैं? स्फीयर से. उनके दोनों पार्ट किससे बने रहते हैं? स्फीयर से. नाउ सी द फिगर 7.3 क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव lenses. Now see, there are the two sphere. Yes, this is the sphere 1 and this is the sphere 2. ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो क्या है? ये sphere 1 है और ये sphere 2 है. Now see, yes, here both the circles are intersecting to each other and the shaded portion is the common part of the both circles. Okay, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो shaded portion है, ओके वो क्या है? ये सीन दोनों का कॉमन पार्ट है. किसका? स्फीयर 1 का एज वेल एज स्फीयर 2 का. नाउ व्हेन यू सी द पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 दिख रहा है, ओके, दिस पार्ट 1 इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर 1 एंड yes this 2, the part which is yes mentioned by 2, this is the part of the sphere 2. Now we know that yes this sphere have the one center of curvature. Similarly this sphere also have the yes center of curvature. And now yes lens obtained is here is this is the lens, and yes half part of this lens is from the sphere 1 and half part of this yes lens is from part 2 sphere 2. इसका आधा पार्ट जो है इस साइड वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला, वो राइट साइड वाला पार्ट किसका बना हुआ है? स्फीयर 1 का है और इस साइड वाला क्या है? स्फीयर 2 का है. नाउ यस बिकॉज यस बोथ स्फीयर्स हैव यस ऑब्टेन फ्रॉम द टू डिफरेंट स्फीयर, दैट्स व्हाई दे हैव द टू यस सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक लेंस के कितने? टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, बिकॉज हियर टू सरफेसेस आर बाउंड एंड टू सरफेसेस हैव द टू center of curvatures. Now see the figure B. Figure B में देखो yes now yes these two circles are not intersecting to each other. इसमें ये एक दूसरे को क्या है? टच नहीं कर रहे हैं. Okay, now yes see
the part 1, this is the sphere 1 and this is the sphere 2. Now yes, part 1, it is part of the sphere 1, and yes, 2, it is the yes part of the sphere 2. Now you see the spheres is and the lens formed by these two sphere, ये दोनों स्फीयर से क्या है, ये बना हुआ ये पार्ट है. ओके, इट्स क्लियर नाउ. तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये किसका है, ये this part is the S1 and this is the S2. Now yes, here also there is the two center of curvature because these two surfaces are the part of the two spheres. इसके भी क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बिकॉज ये भी क्या है, दो अलग अलग टू डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये स्फीयर से बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है. The cross sections of the convex and concave lenses are shown in parts A and B of the figure. The surface marked as 1 is the part of sphere 1 while the surface 2 is the part of the sphere 2. Okay, I think you understood. Okay, let's see the different terminology or terms used in the lenses. अब लेंस में जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं वो हम लोगों को देखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, इसको याद भी रखना है. ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ वी नो दैट lenses are the part of the spheres, hollow glass sphere. So that center of that sphere will be the center of curvature of that surfaces which are bonded to each other. The center of the sphere whose parts form surfaces of lens are called center of curvatures of the lenses. So what is the center of curvature? Center of sphere whose parts form the surfaces of lens. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, वो स्फीयर के ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसके क्या है, पार्ट्स लेंस फॉर्म करते हैं. और उसमें फोटो नहीं है, स्कॉलरशिप का जो वो रखा हुआ है ना, स्कॉलरशिप का रखा हुआ है फोल्डर की तरह ही है, उसी में है, ऊपर ही रखा. तो ओके, yes, the center of sphere whose parts form the surfaces of lens called center of curvature of lenses. A lens with both surfaces spherical has the two center of curvature C1 and C2. Okay, if the both surfaces of the lens is spherical then it will have the S2 center of curvature, and if one part is plane and yes another part is spherical then it will have the only one center of curvature. Now radius of curvature. The radii r1 and r2 of the sphere whose parts form the surface of the lenses are called radii of curvature of lens. जो रेडियस r1 है, रेडियस r2 है, जो दो अलग अलग स्फीयर्स के है और जिसके जिसके पार्ट्स उस लेंस के स्फीयर होते हैं, उसी को ही उसका क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखना हम लोगों को, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. द इमेजिनरी लाइन passing through both centers of curvature is called principal axis of the lens. Okay, now principal axis, imaginary line passing through both center of curvature is called principal axis of the lens. Now we know that yes, each lens having the yes two center of curvatures, and that imaginary line which is imaginary line which passes through center of curvature is called the principal axis. Now optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर, तो दिस इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर इज द व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस इट डू नॉट डिफ्लेक्ट. तो दिस इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस फ्रॉम वेयर व्हेन द रे ऑफ लाइट
incident, then it do not get deflected. It goes from one side to another side without changing its direction. That point is called as the optical center and represented by SO letter. The point inside the lens on the principal axis through which light ray pass without changing their path is called optical center of lens. तो ये लेंस के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ से जब रे ऑफ लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो बिना डेविएट हुए, बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए एक साइड से दूसरी साइड स्ट्रेट वे चले जाती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, हम लोगों को मालूम है कि क्या है, इस जब जैसे कि ये क्या है वर्टिकली, जब कोई क्या होता है ये रे इंसिडेंट होता है वर्टिकली तो क्या होता है ये वो क्या है बेंड होती नहीं है, बट यहाँ पे क्या है ये वर्टिकली कंपलसरी नहीं है, ये एक पॉइंट है उस लेंस पे, जब उसके वहाँ से ये पास होती रे तो वो क्या है बेंड होता नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब लाइट क्या होती है ऑब्लिकली फॉल होती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांस मीडियम में ट्रेवल होने के टाइम, जब ऑब्लिकली फॉर्म होती यस इंसिडेंट होती है तो उसका जो पाथ होता है वो पाथ स्ट्रेट नहीं रह जाता, बल्कि वो क्या है सर्टन एक्सटेंट सर्टन एंगल तक बेंड हो जाती है, या तो हाँ यस बेंड होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एंड ये रिफ्रैक्शन डिटेल में आपने क्या है ये प्रीवियस लेसन में स्टडी किया है। तो इन लेंसेस रिफ्रैक्शन काम करता है, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाले जो रेज है उनके अंदर किसी टाइप का यस क्या है रिफ्रैक्शन होता नहीं है। Optical center, the point inside a lens on the principal axis through which light ray passes without changing their path is called optical center of lens. Now see figure 7.4. Okay, now here see here the biconvex lens is shown. यहाँ पे biconvex lens show किया है. Now see these blue lines P1 and P2 and P3. Now yes P1. Now yes P1 is the incident ray. Now incident ray passing through O. O means optical center. Yes, it goes straight way. Okay, means it do not bend. Now you see the P2 also passes through optical center and there is a no bending of incident ray, and similarly yes when P3 passes through optical center the incident ray do not bend. Now you see yes the second figure, it is the yes concave lens, double concave lens. Okay, now see the optical center of it. Now yes P1 P2 P3. Now yes when P1 passes through the optical center it goes straight way without bending. Similarly P2 also goes from one side to another side without bending, and P3 also goes from one side to another side without bending. So what happens when the ray of light incident on the optical center it goes from one to other side without bending. Okay, तो यस यही क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। Now principal focus, when the light rays parallel to the principal axis are incident on convex lens they converge to a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. Now yes observe the figure 7.5. Now see yes this is the convex lens, ये convex lens है। Now yes these are the rays coming from the source of light, ये rays है, and after the refraction के बाद ये जो लाइन हमको दिख रहा है F1 and F2, F1 क्या है प्रिंसिपल फोकस 1 and प्रिंसिपल फोकस 2। तो yes when the ray of light yes coming from the source strike to the yes the biconvex lens, or you can say convex lens, then the incident ray collect at a point on the principal axis and that point is called as the principal focus. अब यहाँ पे जितने भी रेज है आने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिल रही है, उसी
पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. एंड इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस, in case of the concave lens, the is now coming light are appear to meet on the principal focus. उसमें क्या ये आने वाली रेज, इंसिडेंट रे कहाँ पे इस उस पे आते हुए फील होती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इस प्रिंसिपल फोकस. उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. ओके, लेट्स रीड नाउ. When light ray parallel to principal axis are incident on convex lens, they converge to a point on principal axis. This point is called principal focus of the lens. As shown in figure 7.5a, f1 and f2 are the principal foci of the convex lens. Light ray parallel to the principal axis falling on the convex lens come together, that is get focused at a point on the principal axis. So this type of lens is called as the converging lens. So the lens which converges the coming rays at a point on a principal axis called as the converging lens. This point is called the principal focus of the concave lens as shown in figure 7.5b. F1 and F2 are the principal of the concave lens. Okay, now yes, what you have learned in this paragraph? Say paragraph. Light rays parallel to the principal axis falling on a convex lens come together and get focused at a point on the principal axis. So this type of the lens is called converging lens. अब ये यहाँ पे समझ में आ गया कि जो लाइट रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है और उसके बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे वो मिलती है, तो ऐसे लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है. एंड अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड उसके बाद में रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या है, ये एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होती है. एक्चुअल में मिलती नहीं, मिलती हुई अपीयर होती है, तो ऐसे पॉइंट को उसका क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. The light rays parallel to principal axis falling on the concave lens go away from the another after refraction. So this lens is called diverging lens. जो रे ऑफ लाइट क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, किस पे? इस कॉन्केव लेंस पे फॉल होती है, तो वो क्या होती है? इस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या है? स्कैटर्ड हो जाती है और एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के मिलते हुए दिखाई देती है. ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है. ओके, नाउ फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. अब देखो यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे समझो ये लेंस का ये सेंटर है, तो ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है? ये कन्वर्ज हो रहा है. तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज कॉल्ड एज द focal length. Okay student, now yes, unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Yes, is anybody having any doubt? Ajmal? Yes, do you have any doubt? Okay student, now yes, I am ending the meeting.